Friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to portfolio requirement at IIT Hyderabad for मास्टर्स प्रोग्राम. एकेडमिक सीवी भी बोलते हैं इसको, और ये पोर्टफोलियो आप प्रोफेसर्स को मेल करते टाइम उनको भेज भी सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है. अगर आपको कोई भी हेल्प पोर्टफोलियो से रिलेटेड फ्रेंड्स रिक्वायर्ड है तो आप श्रुति मैम के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं. मेरे इस वीडियो के साथ एक इंटर्नशिप व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक लगा हुआ है. अगर आप फेलोशिप, इंटर्नशिप या ऐसी कोई चीज़ें चाहते हो, प्रोफेसर्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो, जुड़ सकते हो. आपको स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती हैं. यू नीड टू थिंक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कन्वेंशनल और रूटीन इज. If you follow the same strategy which rest of the crowd is following, you will not get opportunities. You need to think something different and something unique in which you put effort. My today's video is related to how to make your academic CV. One is resume or CV which you make for job. Another resume which you just make for campus placement. There can be resume which you are making for academic purpose, like sending to professor for internship, for fellowship, for PhD program. And that academic CV itself will become portfolio if you design it well. So what is portfolio? Academic portfolio is where your very attractive photo is there, design is very good, there are templates available. You can make your portfolio, academic portfolio on those templates. I'll show you also. Like whatever you are showing, your skills which you are showing, proficiency in your skill you are showing through some kind of diagram. You can make chart of your research progression. I mean, if you have done some research work and you want to show some kind of chart, you can do that. So portfolio is basically visually attractive thing. It typically is of 1 page. It can be maximum of 2 page. So CV and portfolio has to be 2 pages maximum. All of you should make your academic portfolio very nicely, in which your academic background should get reflected, your projects, your internships, your research background, your professional skills, maybe extracurricular skill also. So academic portfolio or your academic CVs, professionally it carries 90% information is professional skills, professional information. 10% is personal, like hobbies, strength, weaknesses, personal skills. Those are not very important in academic CVs, right? So for job these may be important. For jobs maybe I want to know your attitude, but not for master's program. I'm not employing you for a job, so those things are not important. So this video, please watch it thoroughly. And yes, in case you are not aware, Yourpedia is the largest platform created to help all of you avail the wonderful higher educational opportunities, MS, PhD opportunities, direct PhD, integrated PhD with fully funded scholarships in India and globe, right, all over the world. So this particular document is related to academic and CV or portfolio, and it is the requirement of IIT Hyderabad for master's program. And Hyderabad is doing good, and this document may be helpful for all of you. So you can get in touch with Shruti ma'am by joining in this particular WhatsApp group. So academic CV versus portfolio, what is the difference? What is academic CV? Academic CV is nothing but where you mention all your academic background, your educational background, fellowship, research position, whatever you want to do. So it is more detailed information about your professional journey. I'll show you the example. मैं आपको दिखाऊंगा academic CV कैसा दिखता है. Academic CV का ही beautiful version next आपका personal branding portfolio होता है. So portfolio is nothing but, आपने कई बार देखा होगा गवर्नमेंट अपनी कोई स्कीम अनाउंस करती है, उसका एक इमेज सा शो करती है, पोस्टर शो करती है, वो गवर्नमेंट का एक ब्रांडिंग होती है और वो गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो होता है. उसी तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है, दैट इज पोर्टफोलियो, दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ एकेडमिक सीवी, राइट. सो आई विल शो यू दैट फ्रेंड्स. और आपके एकेडमिक सीवी में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए. पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, हॉबीज, इंटरेस्ट, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, वो नहीं होनी चाहिए. एकेडमिक बैकग्राउंड हो, एकेडमिक इंटरेस्ट हो, रिसर्च बैकग्राउंड जो आपकी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप से रिफ्लेक्ट होती है, और रिसर्च इंटरेस्ट जो आप फ्यूचरिस्टिक करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं. प्रोफेशनल स्किल्स जिसमें आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कोई सर्टिफिकेट आपने किया है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है. प्रोफेशनल बॉडीज़ जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, आप जिसका पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है. जॉब अगर आपने किया है उसका एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल रेफरेंस
प्रोफेसर्स के, एम्प्लॉयर के रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा है फ्रेंड्स, ये आपके एकेडमिक सीवी का पार्ट है, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं 2 मिनट स्क्रीन यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप इसको देखो, ये आपका सीवी का पार्ट होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू कंपोनेंट्स ऑफ एकेडमिक सीवी। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में, ये डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी आनी चाहिए, ये उसमें आपके कंपोनेंट आने चाहिए, और ये मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी ये होनी चाहिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, और इसमें रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होता है। जैसे आपने बीटेक किए तो बीटेक सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद +2 आएगा, उसके बाद 10th आएगा, ऐसे। डिप्लोमा अगर किए तो बीटेक के बाद डिप्लोमा आएगा, ऐसे आपका डिटेल आनी चाहिए। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट एकेडमिक पोजीशन, आप अगर आपकी कोई प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट है, कहीं पे आपने कुछ काम किया है, तो आप उसको लिखो। आईआईटी बॉम्बे में मैंने रिसर्च एसोसिएट काम किया है इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था वो आपको लिखना चाहिए, आप कब वहाँ पे थे वो आपको लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आपको लिखनी चाहिए। आपने कोई प्रोजेक्ट जो किए हैं, अपने इंटर्नशिप किए हैं, उनका नाम बहुत अच्छे तरीके से, आपने टाइमलाइन कब किया आपने, उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, उसके इन्वेस्टिगेटर्स के नाम आप लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं आपने क्या किया था। पब्लिकेशन, जैसे कौन सा पब्लिकेशन था, जर्नल था, कॉन्फ्रेंस था, पीयर रिव्यूड था, क्या था। और जर्नल्स को या पब्लिकेशन को लिखने का एक तरीका होता है, आपको वही फॉलो करना है, राइट। एंड इवन इफ यू हैव सबमिटेड, you can write that this is the publication in which I have already submitted my paper. You can write that. Dates are to be mentioned, right? Conference, seminars, whatever you have done. Any grant, fellowship, awards which you have got, but significant only. As I told you, or related to professional. Not that मेरे को 10th class में एक मैंने debate participate किया था, उसका award मिला था. Don't mention those things. Only related to this particular thing you should mention, right? Now सर्टिफिकेट्स, जैसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप जो मेंशन करते हैं, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जैसे सपोज आपने को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया है, तो डेट आपको मेंशन करनी है, कहाँ पे आप ले रहे हैं वो मेंशन करनी है, और उसके कुछ पॉइंट्स क्या हैं। जैसे आप मैटलैब यूज़ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं डाटा, जो आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको उसमें वो मेंशन करना चाहिए। प्रोफेशनल मेंबरशिप सर्टिफिकेट उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क, सर इज सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोफेशनल मेंबरशिप? So you can always mention these things. Certificate is not required for that, right? Skill, professional software skills. ये जो पार्ट है अब ये आपका पोर्टफोलियो में आता है। ऐसा डिजाइन आप देख रहे हैं, दिस इज सो पोर्टफोलियो इज नथिंग बट एकेडमिक सीवी ओनली, बट प्रेजेंटेशन इज लिटिल मोर लाइक अ पोस्टर, इट इज लाइक अ ब्रांडिंग, राइट। जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में 5 में से मेरा 6 में से इतना प्रोफिशिएंसी है, डिडक्टिव रीजनिंग में मेरी ये है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरा स्किल्स ऐसी है। सो यू कैन मेंशन अबाउट योर स्किल्स एंड दे शुड बी प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर स्किल्स, C++ is a software skills, MATLAB is a professional skills, FEM is a professional skill, so you can mention about that. References, आपको the person who is your employer, and you should always take a reference from someone जिसने आपके साथ काम किया है या जिसने आपको मेंटर किया है, and someone who is a senior to you. Reference is to be taken from him, and never mention the name of person who will not give you positive reference, right? They will take reference from him. Email ID and contact number is to be provided. So if you are going for higher education like masters and PhD, one of the referees should be from academic background, preferably the person who has mentored you for your BTech project. So they will mention also in what capacity he is referring you. Don't take reference from your junior or colleague. Don't take reference from your friends or relatives. Referee should be genuine fellow who is in contact with you, because I'm going to ask you, who is this guy and how do you know him? His qualification, background, etc. He should be he should be related to your academic background and professional background, obviously, but his background also is important. Somebody who is only BTech and is referring somebody for going for PhD may not work properly, right? So that is very, very important. So reference, in one line you can give 3 reference. How many references are to be given? 3 reference. Name, his capacity, from where he is. So your CV should be tailor made. It's a customized CV. It is a tailor made, it's a customized CV, and it is basically you can discuss, make your CV and then show it to Shruti ma'am or us
the mentors, and it has to be tailor-made CV for you, right? It should be concise and precise, nothing unnecessary should be mentioned there. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है और इसको ढंग से एक बार करके आप अपना अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कुछ एकेडमिक सीवीज के एग्जांपल, नॉर्मली एकेडमिक सीवी पे फोटो नहीं होता, आपके पोर्टफोलियो पे फोटो होता है, और ऐसे सैड फेस वाला पोस्टर आपको फोटो नहीं देना है, स्माइलिंग फोटो देना है। आपकी एनर्जी शुड गेट डिस्प्लेड इन योर फोटोग्राफ। अच्छे फोटो से खींचो, स्माइल करते हुए फोटो खिंचवाओ। मैं आपको बताऊंगा कैसे, बिकॉज यू नो लाइकेबिलिटी गेट एनहांस्ड। क्या पता प्रोफेसर आपको देख के ही स्माइल करते हुए देख के हायर कर ले, सो यू नेवर नो दैट। सो दिस इज करियर ऑब्जेक्टिव ही लिखा होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखा होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो आपने किया, कॉलेज प्रोजेक्ट किए, ये डॉक्यूमेंट ले लो। और इसमें मैंने हर एक सीवी जब शेयर किया मैंने ये भी लिखा है कि इसमें आप क्या ले सकते हो, इसमें से क्या बेस्ट चीज़ है, राइट। दीज आर सम रिज्यूमेंस, तो इनको रेफर कर लेना फ्रेंड्स, एक बार देख लेना। रिज्यूमेंस ऐसे होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको, दे आर सिंपल सीवीज, राइट, सिंपल सीवीज, लेकिन काम की बातें लिखी है इन्होंने। दिस टिपिकल सीवी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आई एम गिविंग यू। नो पोर्टफोलियो और सीवी में क्या डिफरेंस होता है? एकेडमिक सीवी और पोर्टफोलियो में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि आपका एकेडमिक सीवी तो मैंने दिखाया, ऊपर जो है आपका टिपिकली 2 पेज तक का होना चाहिए, और इसका फॉर्मेट आपका ऊपर मैंने दिखाया है। पोर्टफोलियो जो होता है वो बेसिकली विजुअल या ग्राफिकल या टेबुलर फॉर्म में आप चीज़ों को दिखा सकते हो। दिस इज लाइक अ पोस्टर, इसका इमेज चीज़ें वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आप इनको दिखा सकते हो। लेंथ जो थी इसकी 1 पेज की होनी चाहिए, राइट, एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड ऑन दिस। नो सी दिस राहुल शर्मा, सी हाउ इज स्माइलिंग, सो यू नीड टू प्रोवाइड। आप किसी को स्माइलिंग देखते हो, बड़े अच्छे तरीके से उसने फोटोजेनिक फोटो खिंचवाया है, तो ऐसा आपको अच्छा सा फोटो खिंचवाना है। प्रोफेशनल समरी दे सकते हो अपनी, टेक्निकल स्किल्स, ये कुछ फॉर्मेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट अपना आपको प्रोवाइड करना, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे स्पेस यूटिलाइजेशन किया है, कैसे ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है, ये आपका, ये आपने जो एकेडमिक सीवी पोर्टफोलियो देखना है, ये टेक्निकल स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलर और कॉन्टैक्ट्स जो उसने मेंशन किए हैं वो अच्छे दिए हुए हैं, आप यहाँ से उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। रॉब स्मिथ, ये भी देखो कैसे स्माइल करते हुए दांत निकालते हुए, हालांकि मेरे को लगता है उसने दांत में वो तार सी डलवा रखी है, लेकिन फिर ही फोटो खिंचवाई है उसने, राइट। आप भी ऐसा ही करो, अपना कॉन्टैक्ट दे दो और अपना यहाँ पे लिखो सारे के सारा, और देखो कितना अच्छा लग रहा है, साफ सा लग रहा है। तो इसको मैंने दिया हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस इसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको फोकस करना है। इसमें डेट्स नहीं दी हैं, आपने डेट्स भी देनी है, राइट, हाँ डेट्स दे रखी हैं, सॉरी, इट इज़ डन। सो ये श्री हर्ष आदित्य का मेरे को अच्छा लगा, इसमें इसको भी देख लेना, पोर्टफोलियो है, अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, अचीवमेंट बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किए हैं इसने अपनी, तो अचीवमेंट्स को इस तरीके से मेंशन करना है। तो ये डॉक्यूमेंट ले लो फ्रेंड्स, और ये बहुत मेरे को ये प्रोफाइल इसका अच्छा लगा, इसने अच्छे तरीके से मेंशन किया है, फ़ोटो नहीं दिया है, फ़ोटो आप दे देना, तो इसको आप की स्किल्स और कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर कपल ऑफ पोर्टफोलियोज। सो यस, मेक द पोर्टफोलियोज फ्रेंड्स, सेंड इट टू अस, और ज्वाइन करो व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे साथ जुड़ो, एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन एक्सप्लोर थ्रू दिस। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।